یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ظرف المکان ایڈوربس آف دی پلیس. اوکے لاسٹ کلاس میں ہم ظرف الزمان ڈسکس کر رہے تھے یعنی کہ ایڈوربس آف ٹائم. ٹوڈے وی آر موونگ آن ٹو ظرف المکان ایڈوربس آف پلیس یعنی کہ ایسے ایڈوربس جو بیسیکلی کسی جگہ کے بارے میں انکوائری کرنے یا پھر کسی جگہ کے بارے میں انڈیکیشن یا پھر انفارمیشن دے رہے ہیں. تو ایسے ظرف کو ہم بیسیکلی ظرف المکان کہتے ہیں. ان میں سب سے پہلا ہے آپ کا حیثو. حیثو یعنی سمپلی ویئر. حیثو از ویئر. اٹ از جنرلی مضاف ٹو اے سینٹینس یعنی کہ اضافہ کے کنسٹرکشن میں حیثو جو ہے وہ مضاف بن کے آتا ہے. اضافہ میں یا پھر مضاف الیہ میں حیثو جو ہے وہ مضاف بن کے آتا ہے. ایگزامپل اجلس حیث زید جالس. اجلس حیث زید جالس. تو یہاں پر ویری کلیئرلی آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ حیث مضاف ہے اور زید جالس کیا ہے، یہ اس کی کنسٹرکشن ہے، سوری اس کی مضاف الیہ. تو فرام دس وی انڈرسٹینڈ کہ حیث جو ہے وہ بیسیکلی ایز اے مضاف سینٹینس میں آتا ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ ویئر. اوکے سملرلی نمبر ٹو کیا ہے، قدامو. قدامو اینڈ خلف. قدامو اینڈ خلف again simply means قدامو in front of, خلف behind. It has the same rules of those for قبلو and بعدو. اوکے نذیر اشرف بتائیں قبلو اینڈ بعدو میں رول کیا تھا؟ نذیر اشرف بتائیں مضاف ہوگا تو معرب، مضاف الیہ ہوگا تو مبنی. آواز ہی نہیں ہے آپ کی. کوئی آواز نہیں آتی. کٹ رہی ہے. میں نے کہا مضاف ہوگا تو معرب، مضاف الیہ ہوگا تو مبنی ہوتا ہے قبل اور بعد. اوکے دیٹس گڈ، ویری گڈ، شاباش. تو اسی طریقے کا رول جو ہے یہاں پر ہی فالو ہوتا ہے. اوکے جو قدامو اور پھر خلفو میں رول فالو ہوا تھا یعنی کہ یہ مضاف الیہ بن کے آئیں گے تو اپنا اعراب چینج کریں گے، اگر سے نہیں تو یہ نارملی اپنا اعراب ویسے ہی رکھیں گے جیسے ہے. اوکے فار ایگزامپل قام الناس قدام وخلف. The people stood in front and behind. قام الناس people stood قدام in front of and وخلف and behind. ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ قدام کب استعمال ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ پرویش یاد ہے نا آپ کو رول سیم رول قبلو اور بعدو کا رول؟ ہاں سیم اس رول کا ہے. اعراب سیم ہاں رول ہوگا نا. ہاں اعراب سیم ہوگا، مضاف چینج نہیں ہوگا. جب مضاف الیہ بن کر آئے گا تب بس اعراب چینج ہوگا ورنہ پھر نہیں ہوگا. نہیں تو یہاں پر جو ہے قبل کا جو آپ حیثو کا بتایا تو اس میں تو اعراب چینج ہے. وہ مضاف حیثو کا کے لیے تو ہے، سب اچھا کے وہ لیے صرف الگ الگ ہے. حیثو ہے. ہاں وہ حیثو کے لیے. اوکے اس لیے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں نا کہ جہاں پر جو رول ہے وہ رول بتا رہا ہوں. تو اسی لیے یہاں پر دیا بھی اس طریقے سے گیا ہے کہ الگ الگ ورڈ کے لیے الگ الگ ایکسپلینیشن، ورنہ پھر سارے ورڈ لکھ کر ایک ہی ایکسپلینیشن دے دیتے نا، ایسا تو نہیں کیا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحیح. ہاں چلے ٹھیک تو آگے چلتے ہیں. نمبر 3 تحتو اینڈ فوقو. اگین یہ ایسے ہی ہیں تحت اینڈ فوقا.
सेम रूल कबलू एंड बादू के लिए, अगर मुदाफ इलैह बन कर आएंगे तो तहता तहती बनेगा, वरना फिर ये तहतू या फिर फौकू ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल जलस ज़ैदुन तहतू व अमरुन व अमरु फौकू, यानी ज़ैद sat under the अमर and Amar above. Right side under and Amar above. So we can locate, understand here, Tahtu and Fawqu. दोनों अपना एराब जो है वो इंटैक्ट रखा है उन्होंने. तब ये अपना एराब चेंज करेंगे जब एज ए मुदाफ इले सेंटेंस में बनकर आएंगे, तब ये अपना एराब जो है वो चेंज करेंगे. ताहतू कैन बिकम ताहता. ओके. नंबर 4, इंदा. इंदा मीन्स सिंपली बाई विच और एट नियर. ये चारों मीनिंग इसके हो सकते हैं. एग्जाम्पल द मनी इज विद Zaid. Al-malu inda Zaidin. Al-malu inda Zaidin. Inda will get a kasra if it is preceded by min. सिर्फ सिर्फ सारे के सारे हर्फ में यानी कि हुरूफ में जब मिन आएगा ना तभी उसे कसरा आएगा. ओके. जब मिन आएगा तभी कसरा आएगा, वरना फिर दूसरे हर्फ आएंगे तो जरूरी नहीं कि कसरा आए. एग्जाम्पल मिन इंदिल्लाह, यानी कि फ्रॉम अल्लाह. गेटिंग दैट रूल समझ रहे हैं आप लोग? ये इंदा का रूल है, इंदा के साथ अगर मीन आएगा तो जो है वो मजरूर हो जाएगा. मजरूर बन जाए. यस, वेरी गुड. नोट बनाने इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि ये हर एक वर्ड के लिए अलग अलग रूल दे रहा है. यहाँ पर कोई भी जनरल रूल किसी के लिए भी फिक्स नहीं है. ठीक है. नंबर 5, आइना एंड अन्ना. आइना एंड अन्ना बेसिकली दे आर इस्तिफाम, क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इस्तिफाम, अगर तुम्हें कहूँ अन्ना तज़हबू या फिर आइना तज़हबू, बोथ मीन्स सेम. ओके, वेयर आर यू गोइंग. दे आर यूज फॉर शर्त एंड जजा, यानी कि ये भी शर्त और जजा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि कोई कंडीशन सेट करने के लिए. एग्जाम्पल आइना तजलिसु अजलिस, जहाँ पर तुम बैठोगे वहां पर मैं बैठूंगा. that's what it is. Where you sit I will sit. अन्ना तजलिसु अजलिस, where you sit I will sit. ठीक है. कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है और इस्तिफाम के. ओके, लेकिन ज़र्फुल मकान है क्योंकि किसी प्लेस के बारे में इंक्वायरी कर रहा है. ठीक है. ये सर कंडीशन है. कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है, कंडीशन सेट करने के लिए. आपने तो वो चीज बताई है. आइना कंडीशन तुम्हारा है. एग्जाम्पल कंडीशन है और दूसरी चीज ज़र्फुल मकान इस्तिफहाम. है, प्लेस के बारे में इस्तिफाम. हाँ, प्लेस के बारे में इंक्वायरी कर रहा है. क्वेश्चन वर्ड है ना ये भी, तो इसलिए हम इसको इस्तिफाम कहेंगे. राइट, समझ रहे हैं आप? जी जी. Okay, let's move on to number 6. Lada and ladun. Again, they mean at, by, near, with, same. And in that case, इसका same meaning है इसका, लदा और लदुन का. Example, al-malu lada zaidin. The money is with Zaid. The money is with Zaid. Min ladun hakimin khabirin. Means from all the wise, all knowing. अब चलिए अंडरस्टैंड करते हैं. लदुन इज जनरली प्रेसिडेड बाय मिन. ओके. अमूमी तौर पर लदुन जब आता है सेंटेंस में तो आप देखेंगे कि उससे पहले मिन आएगा. When used in the meaning of possession, the difference between lada, ladun, and inda is that in the case of ladun and lada, the possessed thing must be present with the person, whereas in the case of inda, the possessed thing need not be present in the with the person. Basics are difference. अंडरस्टैंड करें. इन द
इंदा और लदा में फर्क क्या है? बेसिक फर्क ये है, लदा लदुन इंदा दोनों का मतलब सेम है, मीनिंग में दोनों सेम। फर्क ये है कि जब आप लदा और लदुन इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त जरूरी है कि वो चीज उस बंदे के पास होनी चाहिए। लेकिन इंदा ऐसा वर्ड है जहां पर ये इस्तेमाल होता है कि जरूरी नहीं कि वो चीज बंदे के पास होगी। ठीक है, यानी कि एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब आप लदुन या लदा कहेंगे तो एट प्रेजेंट आपके पास वो चीज है। इंदा आप कहेंगे तो समझें कि वो आपकी चीज है लेकिन एट प्रेजेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है। फॉर ओके, एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ इंदल कलम, इंदल कलम फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ लेट्स से अना इंदल कलम, ओके आई हैव अ पेन और a pen is with me, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पेन मेरे हाथ में है अभी। ठीक, समझ रहे हैं आप? अगर से मैं कहूँ लदाई पेन, सॉरी लदाई कलम, तो उसका मतलब क्या होगा? आई हैव अ पेन, यानी कि एट प्रेजेंट मैं अपने हाथ में पेन को होल्ड कर रहा हूँ। हाँ, मैं पूछूं हल इन दी कलम, नहीं सॉरी, हल इन द का कलम, कैसे पूछते हैं? हल जी इन द बिल्कुल का सही है, कलम, अल तो आप इंद का आंसर कलम। करेंगे इन दी कलम। हम्म। तो अगर मतलब से ये मेरे हुआ हाथ ना में कि है, जैसे प्लेस अगर से उसमें, मेरे हाथ मतलब में है प्लेस तो नजर आना चाहिए। सॉरी। मैं बोल रही हूँ जैसे उसमें प्लेस नजर आना चाहिए कि मतलब कोई भी चीज, किसी भी जिस चीज के भी बारे में बात हो रही हो तो इंदा में प्लेस का नजर आना जरूरी है। नहीं, प्लेस का जो लदा लदीन माना तो वही। और इंदा यानी में कि वही ना, देखिए फॉर एग्जाम्पल अबीरा शेख ने मुझे पूछा अल इंद का कलम, तो मैं बताऊंगा हम्म, नाम इंदी कलम, यानी कि आई हैव अ पेन, लेकिन मेरे हाथ में नहीं हम्म, है। समझे कि मेरे हाथ में है तो मैं कहूंगा नाम लदाई कलम। हम्म, लदाई कलम कहूंगा तो राइट नाउ एट द प्रेजेंट टाइम अभी मेरे हाथ में है पेन। हम्म, हिंदी कलम हम्म, कहूंगा तो हाँ मेरे पास पेन तो है, वो अभी नहीं है हाथ में लेकिन है मेरे पास, मैं पोजेस करता हूँ उसे। हम्म, तो बेसिक फर्क इतना है इंदा और लदान। तो जब हम कहते हैं ना लदाई अकुल लदाई उख्त, ओके आई हैव अ सिस्टर एंड आई हैव अ ब्रदर, तो कब कहते हैं हम ये? क्योंकि ब्रदर सिस्टर ऑब्वियसली साथ तो नहीं जनरल, होते वो, लेकिन वो रिश्ता साथ हाँ में जुड़ गया है, जुड़ा हुआ है, राइट? इट इज एन जनरल में बोल रहा है। हाँ अनअटैचेबल है, रिश्ते की तो बात हो रही है वहां पर। यू हैव अ ब्रदर एंड यू हैव अ हम्म, सिस्टर, ओके हम्म, दैट्स हाउ। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट दैट एडवर्ब इज अ मोरब एंड मुदाफ टू अ सेंटेंस और द वर्ड is and could be the mabni alal fathi or it could be the i'rab according to the amil. Okay, important again कि adverbs या फिर ना verb बेसिकली सेंटेंस में वो मुदाफ या फिर यानी कि विच इज मोरब एंड इज मुदाफ, यानी कि ये मोरब भी है और फिर मुदाफ भी होते हैं सेंटेंस में। ओके, तो ये अपना एराब चेंज कर लेते हैं आमिल के हिसाब से या फिर इनके ऊपर फतहा होता है, ये बेसिक सा रूल है। एनी और डजेंट मैटर, आप जब सेंटेंस में इनको तरकीब में पुट करेंगे तब जाकर ये रूल ऑटोमेटिकली आपके जहन में कंस्ट्रक्ट होगा कि कैसे जो है फंक्शन कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, द एडवर्ब यौम व्हिच इज मुदाफ इन द फॉलोइंग लाइन, हाजा यौम यनफअु सादिकीना सिदकुहुम, this is the day when the truth of the truthful
will benefit them. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ابھی راشد یہ رات کا فرق ہے. اعراب کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اور یوم ہے یہاں پر, یوم ہے, ینفع سیم ہے. سمجھ آ رہا ہے تو صحیح ہے. مضاف یوم ہو گیا. کون سا والا صحیح ہے اگر میں سے پوچھیں؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم یا پھر هذا يوم ينفع؟ هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. تو اس نے بتایا نمبر 2 دوسرا والا صحیح ہے. ابھی راشد آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے بھی دوسرا ہی بتایا ہے. اچھا آپ نے بھی دوسرا هذا بتایا. یوم. ٹھیک ہے سوری. ٹھیک. کیا کون سا والا صحیح ہے؟ هذا يوم ينفع صادقين صدقهم یا پھر هذا يوم ينفع؟ هذا يوم ينفع صادقين صدقهم وجوه يومئذ. چلے دوسرے والے میں کون سا صحیح ہے؟ وجوہ یومئذ یا پھر وجوہ یومئذ. سوری یوم اینڈ یوم. یومئذ, وجوہ یومئذ. وجوہ یومئذ رائٹ. مضاف الیہ بنے مجھے گا نا. کوشچن نہیں سمجھ. ہاں تو ایسے بتائے نا, تب سے کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں, سمجھ آیا سمجھ آیا تو بتا ہی نہیں رہے آپ لوگ, اسی لیے سوال کر رہا ہوں آپ سے. دیکھیں کانسیپٹ یہ تھا کہ جب بھی مضاف جو ہے سوری ظرف سینٹینس میں آئیں گے مضاف بن کر تو وہ بیسیکلی معرب ہوں گے. کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے. یعنی کہ وہ اپنا اعراب چینج کریں گے عامل کے حساب سے. عامل کے حساب سے اپنا اعراب چینج کریں گے. That's the thing is been explained. ٹھیک ہے, تو اس رول کو فالو کریں گے ہم, تو ہمیں یہاں پر سیکنڈ والا جو ہے وہ صحیح لگے گا. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وجوه يومئذ. ابھی بتایا یہاں پہ مضاف کیسے ہو؟ یوم ينفع کیا ہوا؟ اس دن کی بات ہو رہی ہے نا جس دن صادقین کو ان کا صدقہم مطلب ان کا وہ اجر ملے گا. The truth of the truthful with benefit. جو سچ ہے صادقین کا وہ ان کو فائدہ دے گا اس دن. تو تشریح دیکھیں گے سب کچھ قافلے بن جائے گا اور یوم آدم اس کا مضاف ہوگا. تو اس سینیریو میں میں آپ سے پوچھا ہوں جب یہ مضاف ہوگا یہ اپنا اعراب چینج کرے گا عامل کے حساب سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں. جی سمجھ آیا آپ کو؟
मुदाफ इलय चेंज करता है, मुदाफ चेंज करता है, इराब किसका चेंज होता है? चले और सिंपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। चले पहले वाले सेंटेंस में आए आप। पहला वाला सेंटेंस क्या कह रहा है? दैट एडवर्ब व्हिच इज मुरब, यानी कि वो ज़र्फ जो मुरब है, जो मुरब है। आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, वो वाला वर्ब या वाला नहीं, बहुत आवाज, सब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। अब आ रही है आवाज? जी Okay, let's understand. Adverb which is mu'arab and is mudaf. समझ रहे हैं आप? वो ज़र्फ जो कि मुअरब भी है और मुदाफ भी है। कहाँ पर? सेंटेंस में। ओके, वो एडवर्ब जो मुअरब भी है और मुदाफ भी है, वो क्या है? मबनीउन अलल फत्ह। क्या है? बाय डिफॉल्ट मबनीउन अलल फत्ह। ठीक है, या फिर आमिल के हिसाब से वो अपना एराब बदल सकता है। आमिल के हिसाब से अपना एराब बदल सकता है। ठीक है, बस इतना सा रूल है। अभी समझे आप या अभी भी नहीं समझे? जल्दी जल्दी से बताएं अभी शेख। आवाज नहीं है मुझे आपकी। ठीक है, मैं खुद पढ़ के समझ लूंगी। ओके, थोड़ा सा और नीचे आए आप, लेवल को थोड़ा सा नीचे करते हैं तो एग्जाम्पल में समझेंगे आप। देखिए, जो यौमा, रूही परवेज ने कहा कि यौमा वाला सही है। क्यों है? क्योंकि रूल बता रहा है कि जब कोई ज़र्फ वो मुदाफन के सेंटेंस में आएगा तो वो मोरब होगा और उसकी जो एराब होगी वो मबनीउन अलल फत्ह, यानी कि फतहा होगी। तो उस वजह से रूही परवेज ने कहा कि ये क्या होगा? यौमा जो है वो सही होगा। ठीक है, यही बात थी रूही परवेज। जी अगर से हाजा की जगह कोई और आमिल होता तो उस वक्त यौमा जो है वो अपना एराब चेंज कर सकता था। यौमू भी हो सकता था, यौमी भी हो सकता था। समझ रहे हैं? ये दूसरा वाला हिस्सा है सेंटेंस का, कि जब कोई ज़र्फ वो मोरब होगा और मुदाफ होगा तो वो अपना एराब जो है वो आमिल के हिसाब से चेंज भी कर सकता है, लेकिन बाई डिफॉल्ट वो मबनी अलल फत्ह होगा। समझ रहे हैं? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, चले कोई हम कससुन नबीन में फिर से एक्सप्लोर करेंगे उसको इंशाल्लाह, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। चलिए, कससुन नबीन कहाँ जाना, अभी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स हैं। दैट्स ग्रेट। ओके, लेट्स कम टू एक्सरसाइज और सारे रूल्स अप्लाई करते हैं हम, ताकि क्लियरली हमें पता चले। अब देखिए, अब कोई कॉन्सेप्ट आपको तरकीब में नहीं पता चल रहा तो आपको सवाल करना है कि ये वाला कॉन्सेप्ट है क्या, और अंडरस्टैंड करना है। ओके, दैट्स वेयर यू लर्न अगेन। Translate the following ayahs and identify zarf in them, and also identify whether they are from among the zarful zaman और zarful makan। हमने ट्रांसलेट करना है और zarful makan, zarful और जमान भी देखना है और फिर इसकी तरकीब करनी है। चलो शाबाश। चलिए अभी रशीद नंबर 1 क्या करें आप? पहले वाला, यौमा यकून नासु कल फराशिल मबसूस।
Did I check? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। मुझे नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही। अब आई, अब आई। चलें करें? की आवाज सुनी आ रही है तो उसे आप करें। यौम यकुनु नास कल-फराशिल मबसूस। बिल्कुल मकान। आज के दिन लोगों को हमने कल फराशिल मबसूस तो ट्रांसलेशन नहीं बताया। कल फराशिल मबसूस मुझे भी नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं उसे। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा द डे व्हेन पीपल विल बी स्कैटर्ड लाइक मॉथ्स। वो दिन जिस दिन लोग जो है वो पहले होंगे। मौत को क्या कहते हैं उर्दू में नहीं पता मुझे। गधिया पता नहीं रूही परवेज या फिर अभी फिर बताएं मुझे उर्दू वाले लोग। क्या चीज? यौम यकुन नासु कल फराशिल मबसूस में द डे when people will be scattered like moths इसका ट्रांसलेशन है, तो इसको उर्दू में कैसे करेंगे आप? मैं ظرف यौम यकुनु नास कल-फराशिल मबसूस। अच्छा, जो बेड पर होता है वो शायद इनके हम ट्रांसलेशन में देखना पड़ेगा उर्दू में क्या कहते हैं, पता ही नहीं। जो ये यौम यकुनु नास कल-फराशिल जिस दिन लोग बिखरे हुए होंगे, क्या मतलब जैसे हाँ पतिंगों की तरह है ना। कल-फराशिल मबसूस जैसे पतिंगे होते हैं ना, इंसेक्ट्स। हाँ इंसेक्ट्स की तरह, हाँ वैसे कह सकते हैं, थोड़ा बहुत सही है इंसेक्ट्स। ओके यौम यकुनु नासु कल मतलब ये फराशिल। कयामत के दिन जो कयामत के मंजर को बयान कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो ज़र्फ ज़मान में आ जाएगा, वक्त का ज़र्फ होगा ये। वक्त का ज़र्फ हो गया, ओके। और जगह का भी। मकान ज़मान दोनों हो गया। नहीं, ज़मान ज़मान ही होगा, मकान कैसे हो जाएगा? ज़ुर्फ ज़मान होगा सिर्फ, ओनली ज़र्फ हो ज़मान होगा। वक्त के बारे में बात हो रही है ना, उस दिन की बात हो रही है जब ये वाक़या पेश आएगा, तो ज़माने के बारे में बात हो रही है ना, जगह की नहीं बात हो रही है। सही।
यौमा उस वक्त की भी बात हो रही है, उस जगह की भी बात हो रही है बेसिकली। फिर भी अच्छा, अब क्या कहेंगे, यौमा वैसे के जमान कहेंगे यौमा के दरबुल मकान अकॉर्डिंग। कहेंगे। हाँ, यौमा के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जगह भी आ जाएगी। सही। हम्म। तो दो कैसे कहेंगे, दोनों दोनों भी आ सकता है क्या? वैसे मीनिंग तो दे ही रहा है ना हमें ये। हम्म। दिन की भी ओके, बात हो रही है और हाँ, वक्त की भी बात हो रही है। जी। ओके, तो बेसिकली हम इसे ना वक्त के जुमरे में रखेंगे, क्योंकि ये उस टाइम की बात हो रही है। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, उस जी। दिन सब लोग जो है जी। बिखरे हुए होंगे। ये लाइक लकीन, तो हम इसे द डे व्हेन पीपल विल बी स्कैटर्ड लाइक मोथ्स, तो इट्स बेसिकली रिपोर्टिंग द टाइम। ओके, तो इस वजह से हम बिल्कुल जमान के जुमरे में रखेंगे। ठीक है, ठीक। इसके कैमरा का कौन पता है? अब इसकी तरकीब करेंगे तो कैसे करेंगे? यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। कोशिश करें। आई थिंक मुझे तो आज तो आवाज नहीं है, तो उसकी जगह भी नहीं आ रही, और फिर अबीरा शेख की भी आवाज नहीं आ रही, दोनों की आवाज कट कट कर आ रही है। आपकी सही आवाज आ रही है मुझे। चलिए रूही पर आप करें। इसमें ना मैं करती हूँ। हाँ, यौमा ज़र्फ ज़मान हो गया, वक्त का ज़र्फ है, मफूल है, हाँ मफूल, मफूल है ना। हाँ, एंड यकूनु फ़िल मुदारे है। हम्म, काना से आएगा ना, ये काना यकूनु, तो फिर हम्म। नाकिस हो जाएगा। चलिए नाकिस हो गया, यस वेरी गुड। एंड फिर अन्नासु जो है वो इसमें हो गया। इसको गाना हो गया, मतलब ये वेरी गुड। काना, हाँ इसमें काना हो गया, फाइल है। एंड कल फराशिल मबसूसी, हर्फ हर्फ का अलग हो जाएगा, मुशब्बा मुशब्बा। मुशब्बा को फिर होगा नहीं, कल का अलग फराश। हो गया, चले का बेसिकली वो एक और कॉन्सेप्ट है, वो आगे देखेंगे क्या है वो। अल फराशी और अल मबसूस दोनों क्या है ये? मुदाफ है, मुदाफ इलैहि। मुदाफ मुदाफ इले हैं या फिर देखिए। कल फराशिल, अच्छा, कल फराशिल मबसूस है, तो मुदाफ मुदाफ इलैहि तो लास्ट वाला है मबसूस ही, तो इसका मुदाफ मतलब ये कि मुदाफ इले पहले है वाला या फिर मुदाफ। मौसूफ और सिफा है, ये भी देख लें थोड़ा सा। हम्म, मुझे बहुत तो सिंपल सी मुदाफ बात है, जब सही। जब भी आपने मौसूफ और सिफा आइडेंटिफाई करना है, तो आपने इसे लिख लेना है हम्म, जेंडर, नंबर, केस एंड पोजीशन, यानी कि इंडेफिनिट या फिर डेफिनिट। चारों कंडीशन क्या पूरी हो रही है, हो गई तो वो मौसूफ और सिफा है, नहीं हो रही तो दूसरा वाला देखते हैं, कुछ और हो सकता है। कल फराशिल ये मबसूस काम अभी। जा नहीं होगा इधर। क्या होगा ये? हेल्पेजर का, हम्म, हम्म, और फिर वो फराशी मखसूस में मौसम सिफत होगी मजरूर। ठीक है। फिर क्या होगा चलिए जान में ये वाली तरकीब को हम ले लेते हैं। ओके, का जो है वो हरफुल जर है, और फिर आपका फराशिल मबसूस मौसूफ और सिफा है, और मौसूफ और सिफा और जार मजरूर, जो जार मजरूर हो गए, यानी कि मौसूफ और सिफा मजरूर हो गया, और का इसका जार हो गया, और जार मजरूर हो गया, दोनों मिलाकर क्या हो गए? इस्मु काना की खबर हो गए। राइट, सॉरी, खबर। पहले नाकिस की खबर हो गई। खबर उस सानी,
ओके, और यौमा क्या हो गया, वो खबर, मुकद्दम हो। खबर मुकद्दम, यस वेरी गुड। तरकीब समझ आ रही है अभी आप लोगों को? जी। अब सिमिलरली वो रूल भी अप्लाई करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ओके, और एक और चीज है यहाँ पर, यौमा ना अगर से हम इसे मुदाफ बनाएंगे तो यकून नाजु कल फराशिल मबसूत, सारा मिलकर इसका मुदाफ इलैह होगा ये। हाँ सही। ठीक है, ये भी हो गया। और अभी राशिक थोड़ा गौर से सुने, यही बात कर रहे थे तब से हम, कि जब सेंटेंस में कोई वर्ड जो है वो एडवर्ब है, ओके, वो कोई वर्ड एडवर्ब है और वो क्या है, वो मुअर्रब है, तो क्या होगा, वो मबनियुन अलल फत्ह होगा, इसीलिए ये यौमू नहीं है, यौमा है। ठीक है, और अगर सिर्फ फी आ जाता ना पहले, जो कि है आमिल, तो ये यौमी भी हो सकता था। ठीक है, इसी रूल की बात हो रही थी ऊपर वाले सेक्शन में। अभी शेख समझ आ रहा है आपको? मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। लेफ्ट हो गई नहीं वो क्लास में। अच्छा, ठीक है, नंबर 2 करें आप तो से, वमा जअलना लिबशीरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द। और हमने नहीं बनाया तुम्हारे पहले इंसानों को खुल्द यानी हमेशा रहने वाले। वमा जअलना लिबशीरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, यानी कि और हमने नहीं बनाया किसी इंसान को तुमसे पहले जो कि, जो हमेशा रहे। जो हमेशा रहे, हाँ, इमॉर्टल है। ओके, एंड वी डिड नॉट क्रिएट एनी ह्यूमन इमॉर्टल बिफोर यू। ओके, हम्म, जी। चले इसका मतलब इसमें ज़र्फ निकाले, कौन सा है कर? इसलिए ज़रूर हमारे अल्लाह बशर बनाया कबले। कबली, यस वेरी गुड, शाबाश। तो उससे ये मुझे बताएं कि कबलू जो है कबली क्यों हुआ? आमिल की वजह से। आमिल की वजह से तो नहीं होता, रूल याद रखें, रूल नहीं, क्या था? जर 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 मुदाफ बनकर आएगा तो चेंज होगा। मुदाफ बनकर आएगा तो वो अपना रूल आमिल की वजह से चेंज करेगा, यस, ये रूल पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, जी। यस वेरी गुड, शाबाश। ओके, अभी परवेश, सुबहान अल्लाह हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून। आगे कहाँ कौन है? कहाँ मेरे बच्चे? कहाँ मेरे बच्चे? ये जी परवेश, आवाज आ रही है आपको? सुबहान अल्लाह हीना तुमसूना, सुब्हानल्लाहि हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून। तुस्बिहूना तो ये हो गया, फेल अमर हो गया। सुब्हानल्लाहि। तरकीब छोड़े, और मसीह ट्रांसलेशन करके ज़र्फ निकाल कर दें बस इसमें से। ओके, ज़र्फ इसमें होगा हीना। ज़र्फ इसमें होगा हीना। ओके, ट्रांसलेशन इसका क्या होगा फिर? ट्रांसलेशन इसका होगा वमा वो तो सुब्हानल्लाहि। सुबहान अल्लाह, और ग्लोरी बी टू दी अल्लाह, हीना यानी कि व्हेन, तुम सूना when you reach the evening, वहीना तुस्बिहून and when you reach the morning। ठीक है, तो ये हीना जो है ज़र्फुल ज़मान है या फिर ज़र्फुल मकान है? ज़र्फ ज़मान। ज़र्फुल ज़मान है, ओके, क्योंकि वो वक्त की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो उसी अगेन, قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك। कौला फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमक मिन बअदिक। उन्होंने कहा
बस हम انہوں نے کہا یا پھر اس نے کہا؟ اس نے کہا ہم، اس نے کہا ہم نے خود فتنہ آپ کی قوم کو آپ کی بات فتنہ یعنی فتنہ آزمایا. اچھا اس نے کہا بس ہم نے آزمایا آپ کی قوم کو آپ کے بعد قومک من بعدک after you. یو اوکے ٹھیک ہے. اور اس میں جو ظرف کیا ہے؟ بعدی بعدی. یس. ظرف الزمان یا ظرف المکان؟ یہ ہے ظرف الزمان ظرف الزمان. اوکے ٹھیک. اوکے روی پورے آپ کریں ابھی. اس جاؤکم من فوقکم. اس کا مطلب ہوگا اس ظرف زمان ہے جاؤکم چلو ٹھیک ہے ٹرانسلیٹ میں کر دیتا ہوں. اس جاؤکم من فوقکم when they came from above. Okay, when they came on you from above. اوکے یہ بیسیکلی بات ہو رہی ہے مطلب غزوہ خندق کی، جب دشمن نہ اوپر پہ آ جاتے ہیں تو اس کی بات ہو رہی ہے. when they came from above you. اوکے تو اس میں ظرف کیا ہے؟ میں ظرف از ہوگا اس ظرف ہو گیا. ایک اور ظرف ہے اس میں، اور من ہوگا من تو حرف ہے، وہ ظرف کیسے ہو؟ فوقکم ہاں فوقا فوقا. فوقا یس. فوقا از ظرف. اور ظرف الزمان کون سا؟ ظرف المکان کون سا ہے اس میں؟ یہ ظرف زمان ہو گیا اور فوقکم جو ہے وہ ظرف مکان ہو گیا. ظرف مکان ہو گیا. ٹھیک ہے ویری گڈ. چلو اوکے توسیہ ما عندی ما تستعجلون به. ما عندي ما تستعجلون به نہیں میرے پاس جس کی تو کیا تستعجلون جلدی کرتے ہو جس کے لیے تم جلدی کر جلدی کر جلدی کر رہے ہو. اوکے ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اسٹاپ کرتے ہیں. اوکے ریسٹ آف دی جو ہے وہ آپ کے ہوم ورک ہیں. اوکے لیٹس کم ٹو الکنایات سیکشن 2.4.7. ویری سمپل ہے، بہت چھوٹا سا. جسٹ کمپلیٹ دس. پہلا ہے کم اینڈ قضا. کم اینڈ قضا یعنی کہ سو مینی، سو مچ، ہاؤ مینی اینڈ ہاؤ مچ. بس یہ ان کا مطلب ہے. اوکے کم یعنی ہاؤ مینی ہاؤ مچ، قضا یعنی سو مینی سو مچ. اوکے دے کین بی یوزڈ فار نمبر. یہ نمبر کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل کم درہمن عندک. اوکے ہاؤ مینی سلور coins ڈو یو ہیو. اخذت قضا درہمن. I took this many silver coins. میں نے اتنے سارے جو ہے درہم لیے. اوکے بیسیکلی کم اینڈ قضا جو ہے وہ نمبرز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اوکے اور قضا جو ہے نا وہ سچ اینڈ سچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اوکے فار ایگزامپل قال علی قضا و قضا. he said to me such and such. اور he said to me so and so. دونوں ہی اس کے مطلب جو ہے ہو سکتے ہیں. کم اینڈ قضا کیا ہے؟ کنایات ہیں. کنایات ایسے ورڈز ہیں جو انسپیسیفائڈ کوانٹٹی مطلب جس کو تولا یا گنا نہیں جا سکتا، ایسی کوانٹٹی کے بارے میں جو ورڈز ہیں ان کو ہم کنایات کہتے ہیں. ان میں سب سے پہلے ہیں کم اینڈ قضا. اور باقی کیا ہے؟ قیتا اینڈ زیتا. باقی کیا ہے؟ قیتا اینڈ زیتا. سو اینڈ سو، سچ اینڈ سچ. اوکے یہ دونوں جو ہیں انٹرچینجیبلی یوز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل قلت قیتا زیتا یعنی I said such and such. قلت قیتا و زیتا یعنی کہ I said such and such. دونوں ہی مطلب سیم ہوں گے. اوکے فعلت قیتا و زیتا، فعلت قیتا زیتا. I did such and such.
اور edit so and so, اوکے دونوں کے مطلب جو ہے وہ سیم ہوں گے. اوکے اگین لیٹ می سمپلی سمرائز. الکنایات ایسے ورڈس ہیں جن کی اسپیسیفائڈ کوانٹٹی نہیں ہوتی، ان کے بارے میں جو ہے انکوائر کرنے یا پھر کہنے کے لیے ان ورڈس کا استعمال کیا جاتا ہے. کم اور قضا جو ہے بیسیکلی نمبر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور قضا جو ہے وہ بیسیکلی وہ کسی چیز میں سچ اینڈ سچ یا پھر سو اینڈ سو جو ہے کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سملرلی قیتا اینڈ زیتا جو ہے وہ سینٹینس میں سو اینڈ سو اینڈ سچ اینڈ سچ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. کیا ٹھیک ہے، پڑھنا تھا؟ اینی کوشچن؟ کیا پڑھنا تھا؟ کیا پڑھنا تھا؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. لا جی قیتا زیتا اور پھر کیا تھا وہ کم قضا. کوئی پرویز سمجھ ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ہمارا لاسٹ ٹاپک بچے گا. لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا اقسام الاسماء مربع، یعنی ٹائپس آف ڈیکلائنبل اسمس. آخری ٹاپک ہے ہمارا. پھر صرف پڑھیں گے اس کے بعد. صرف کنٹینیو رہے گا، اس کے بعد ترکیب کریں گے ہم. ترکیب اچھا